Good morning, students. I am Megha Agrawal, your computer teacher from Nalanda Public School. In the previous class, we have started lesson number 3. I have done reading for you and have explained you the chapter once again. Now, as we have started this chapter and we have done, I think we have done the introduction part, then we have seen how to insert a table. Then we have seen the methods, 3 methods how to insert a table: the grid method, the insert table dialog box, and the drawing a table. So these 3 were the methods that using these 3 methods we can draw a table or insert a table. Then we have seen some navigation, shortcut keys for navigating in your table. Okay, so we have seen all these keys. I think you also have seen. This is page number 34. You can see here. Okay, this is page number 34. Till here we have completed in the last class. Now moving to the next topic, that is entering data in a table. How you can enter? You have created a table. You have learned how to create a table with different methods. Now we will learn how to enter data in a table. Once you have created the table, the next step is you have to enter the data. For that you should know the method now, how to insert the same data in a table. Very simple, very simple. As you create a table and using pen and paper, and then after that you use your pencil to enter the data now. Similarly, if you want to create a table, that should be of 2 column, item and participants. You can see here, if you want to create a table of 2 columns, 2 columns अगर आपको टेबल क्रिएट करना है इस तरीके का, ओके, जिसमें पहला ऑप्शन क्या है, आइटम है, एंड सेकेंड इज पार्टिसिपेंट. उसके बाद यू हैव टू क्रिएट 5 रोज, 1 2 3 4 5 रोज क्रिएट करना है टू एंटर इंफॉर्मेशन अबाउट 5 एक्टिविटीज़. 5 एक्टिविटीज़ हैं ये. ओके, ये 5 एक्टिविटीज़ है. इनके पार्टिसिपेंट्स की आपको नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं ये आपको मेंशन करना है. तो ये डेटा आपको इस तरीके का एक टेबल क्रिएट करना है. हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको इस टाइप का एक टेबल क्रिएट करना है. तो what are the steps that we need to follow? You just see page number 35. It is given in your book. The steps are okay. Yes, it will be more clear. Okay. So I'm reading it out. For example, you want to create a table that should have 2 columns, item and participants, and 5 rows to enter information about 5 activities. अब देखिए क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है कि अगर आपको सपोज एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें 2 कॉलम्स होने चाहिए. ओके, 2 कॉलम्स होने चाहिए एंड कितनी रोज़ होनी चाहिए, 5 रोज़ होनी चाहिए. 2 कॉलम 5 रोज़, 2 कॉलम 5 रोज़ का हमको एक टेबल बनाना है जिसमें एक में हम लिखेंगे आइटम के नाम, नेम ऑफ़ द आइटम, एंड सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे पार्टिसिपेंट्स, मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स. ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो टू डू दिस. फर्स्ट सी हियर, the steps to enter the data in a table are: first step, click in the desired cell. अब डेटा एंटर करना, हमने टेबल तो बनाना सीख लिया था कि हमको ऐसा एक टेबल हमने बना लिया है. अब हमको इसमें डेटा एंटर करना, तो कैसे करेंगे, क्लिक इन द डिज़ायर्ड सेल. जो भी डिज़ायर्ड सेल है जहाँ हमको डेटा एंटर करना है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेल, फर्स्ट रो. फर्स्ट सेल की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हमने क्या लिखा है, आइटम लिखा, हम इस सेल की बात कर रहे हैं. ओके, सो क्लिक इन द डिज़ायर्ड सेल. हम इस सेल पे जाके क्या करेंगे, इस सेल पे जो हमने टेबल बनाया है, टेबल बनाने के बाद हम इस सेल पे क्लिक करेंगे एंड टाइप द कॉलम हेडिंग टेक्स्ट. मतलब जो भी आपकी कॉलम की हेडिंग आपको देनी है ना, अब वो हेडिंग वहाँ पे टाइप करोगे. जैसे कि हमें यहाँ क्या देना था, आइटम देना था, तो हमने यहाँ पे पहले इस सेल पे क्या किया, क्लिक किया. इस सेल पे अपने कर्सर को लेके गए, यहाँ इस सेल पे क्लिक किया. क्लिक करने के बाद जो भी मुझे टाइप करना था मैंने उसको टाइप किया. देन आफ्टर दैट वी विल यूज़ द टैब की. टैब की आपके कीबोर्ड में होती है. ओके, सो टैब की इज़ देयर इन योर कीबोर्ड. प्रेस टैब की एंड गो टू द नेक्स्ट सेल इन द रो.
ओके जैसे आप टैब की प्रेस करोगे ना, आप इस सेल से स्विच होके किस सेल में आ जाओगे, नेक्स्ट सेल पे आ जाओगे. Okay, so when you will use the tab key, it will take you to another cell, the cell next to the cell that you are working on. Okay, जैसे आप टैब की प्रेस करते हो ना, आप दूसरी सेल पे स्विच कर देते हो. सो प्रेस टैब की एंड गो टू द नेक्स्ट सेल इन द रो एंड टाइप द नेक्स्ट कॉलम हेडिंग. फिर नेक्स्ट कॉलम हेडिंग क्या है हमारी, पार्टिसिपेंट. फिर हम यहाँ पे वो टाइप करेंगे. नाउ एंटर रेलेवेंट डेटा इन द सेल. इसी तरीके से हम अपनी एरो कीज़ यूज़ करके हम एरो की यूज़ करेंगे तो हम कहाँ आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे. ओके इस तरीके से हम एरो की यूज़ कर करके अपने टेबल पे नेविगेट हो सकते हैं एंड डेटा को एंटर करेंगे. दिस इज़ हाउ यू कैन एंटर डेटा इन योर टेबल. क्या करना है, सिंपली जिस सेल में आपको डेटा एंटर करना है, माउस को आप अपने माउस की हेल्प से अपने कर्सर को आप वहीं पॉइंट करोगे जिस सेल में आपको डेटा एंटर करना है, वहाँ पे क्लिक करोगे. फिर जो भी आपको डेटा डालना है वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप जो टाइप करना चाहो वहाँ पे टाइप कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज देयर इज़ एन अमेजिंग फैक्ट. लेट्स सी टू दैट ऑल्सो. अमेजिंग फैक्ट. On the text in a table, you can apply text formatting. अब जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो ना टेबल में, आप उसमें क्या अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो. फॉर्मेटिंग मीन्स आप फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हो, साइज़ चेंज कर सकते हो, उसमें कलर कर सकते हो, हर सेल में फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो. इस तरीके से आप उसमें फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं. नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी गिवन टू यू. You can perform this activity at your home also. If you have computers, then try to perform this activity. Okay, do it yourself. I will explain you what you have to do in this activity. Open MS Word and create a table as per the guidelines given below. आपको टेबल ओपन करना है और इस तरीके का एक टेबल क्रिएट करना है. आपको एक्सेल ओपन करना है, देन यू हैव टू क्रिएट अ टेबल लाइक, सॉरी नॉट एक्सेल, वर्ड ओपन करना है, देन यू हैव टू क्रिएट अ टेबल लाइक दिस. ओके 10 कॉलम्स एंड 7 रो का आपको टेबल इंसर्ट करना है. एंड एंटर द टेक्स्ट एज गिवन इन द फिगर. जैसे इस फिगर में टेक्स्ट दिया ना, इट्स लाइक अ टाइम टेबल. तो इस तरीके का आपको टाइम टेबल बनाना है जैसा पिक में दिखाया है. नेक्स्ट, मूविंग अ टेबल. अगर आपको टेबल को ही मूव करना है, सपोज़ आपने कुछ लिखा था, फर्स्ट पैराग्राफ लिखा था, उसके लिखने के बाद आपने टेबल बनाया था, फिर सेकंड पैराग्राफ लिखा था, अब आपको लगता है नहीं मुझे ये टेबल सेकंड पैराग्राफ के बाद प्लेस करना है, तो आप अपने टेबल को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. आप मूव कैसे करेंगे, लेट्स सी द स्टेप. मूविंग अ टेबल. द स्टेप्स टू मूव अ टेबल फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर आर. However, the mouse over the table are put. Now moving the table. Moving a table. The steps to move a table from one location to another are: hover the mouse over the table and put the mouse cursor on the mouse handle. What is mouse handle? Can you see this? This symbol is a mouse handle. Okay, when you will keep the mouse in your table at the edge of the table, top edge of the table, then you'll see a handle like this. What you have to do, you just have to click this handle and then drag the mouse. अपने माउस को आप ड्रैग करेंगे, इसको प्रेस करके. What is drag? Simply आप माउस को प्रेस करके हिलाएंगे. Okay, that is dragging. ओके सो व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज़ माउस हैंडल. इस माउस हैंडल को आप क्लिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ द माउस एंड ड्रैग योर माउस. अपने माउस को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे एंड टेक द टेबल टू द न्यू लोकेशन. ड्रैग करके आप उसको न्यू लोकेशन पे लेके जाएंगे. क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू मूव द टेबल टू न्यू लोकेशन. रिलीज़ द माउस बटन. फिर आप माउस की बटन को छोड़ देंगे तो इस तरीके से आपका टेबल जो है न्यू लोकेशन पे प्लेस हो जाएगा. Now next is adding rows and column. That is page number, I think, 36. Page number 36, adding rows and columns. How can you, suppose you have created a table of 2 row 2 column and you think no, you need some more rows. आपको कुछ और rows चाहिए. Then you can insert more rows and more
कॉलम्स एंड यू नीड मोर नंबर ऑफ कॉलम्स. सपोज आपने 2x2 का टेबल बनाया था, दो रो 2 कॉलम का, 2 रोज 2 कॉलम का टेबल बनाया. बट आफ्टर दैट यू रियलाइज दैट यू हैव सम मोर डेटा एंड यू नीड टू ऐड सम मोर डिटेल्स टू इट. तो आप क्या करोगे, और रोज और कॉलम आपको ऐड करनी पड़ेगी. सो यू कैन डू दिस ऑल्सो यूजिंग insert tab. Okay, so we'll see the steps. What is the method to insert rows and columns? So I'm reading out it for you. Once a table is created, adding rows and columns can be. Once a table is created, additional rows and columns can be added. एक बार आपने टेबल क्रिएट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा उसमें, मतलब आप उसमें और रोज़ एंड कॉलम्स ऐड नहीं कर सकते. जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल अपना पेन पेपर पेंसिल से अगर हमने टेबल बनाते हैं पेपर पे, तो क्या होता है जनरली, अगर टेबल में हमको बीच में अगर इंसर्ट करनी पड़ जाती है, चलो आइट साइड में अगर इंसर्ट करनी पड़ती है रोज़ और कॉलम्स, तो वी कैन डू इट, फिर भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमको उसको मिडिल में कहीं इंसर्ट करना है कोई कॉलम, या मिडिल में किसी बीच में बिटवीन द रोज़ एंड कॉलम्स आपको इंसर्ट करनी पड़ जाती है रोज़ एंड कॉलम, देन यू हैव टू कट दैट टेबल एंड अगेन यू हैव टू क्रिएट दिस टेबल, है ना. But in using computer, using Word, you can insert the rows and column anywhere you want. Okay, so once place the cursor in a cell. आप अपने कर्सर को कहाँ प्लेस करेंगे, उस सेल पे प्लेस करेंगे जहाँ पे आपको रो और कॉलम को ऐड करना है. सो प्लेस द कर्सर इन अ सेल वेयर आफ्टर, बिफोर और लेफ्ट और राइट यू वॉन्ट टू ऐड अ रो और अ कॉलम. जहाँ भी आपको अपनी कॉलम को ऐड करना है, रो को ऐड करना है, वहाँ पे अपने कर्सर को प्लेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन प्रीवियस टॉपिक अ टेबल इज़ क्रिएटेड हैविंग 2 रोज इन इट. जैसे अभी हमने इसके पहले क्या देखा था कि 2 कॉलम्स का टेबल बनाया था हमने, जिसमें एक आइटम था, एक क्या था, पार्टिसिपेंट्स थे. सम टेबल इज़ बीइंग यूज्ड हियर फॉर द रेफरेंस. हम वही टेबल यहाँ पे यूज़ करेंगे रेफरेंस के लिए, और देखेंगे कि हम उस टेबल में और कैसे नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट वील सी हाउ टू ऐड रोज़. पहले हम क्या देखेंगे कि हम रोज़ को कैसे ऐड कर सकते हैं. Okay, yes, okay, so adding rows हम rows कैसे ऐड करेंगे, how we will going to add rows. So the steps to add a row above or below the current row. सपोज ये टेबल आपने बनाया था 2x2 का, अब इसमें आपको आगे या पीछे कहीं पे रो ऐड करनी है, ऊपर या नीचे, सॉरी, रो ऐड करनी है तो ऊपर या नीचे आपको कहीं भी एक्स्ट्रा रो ऐड करनी है. देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो. क्लिक इन द सेल, एग्जाम्पल cell containing mono act. Click in the cell example containing mono cell. आप उस सेल पे क्लिक करो जहाँ पे क्या लिखा है, मोनो एक्ट लिखा है. क्लिक ऑन लेआउट टैब. अब हम कहाँ जाएंगे, स्टेप 2 में लेआउट टैब पे जाएंगे स्टेप 2 में. देन इन रोज़ एंड कॉलम ग्रुप. अब जो रोज़ एंड कॉलम का ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, रोज़ एंड कॉलम का ग्रुप, वहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट अबव. हमको मोनो एक्ट जहाँ लिखा है उसके पहले एक रो ऐड करनी है, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, ऊपर करनी है ना, एक रो के पहले हमको इंसर्ट करनी है रो. तो हम क्या लिखें, क्या क्लिक करेंगे, इंसर्ट अबव. क्या क्लिक करेंगे, इंसर्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट अबव टू इंसर्ट अ न्यू रो अबव द करंट रो. जो भी करंट रो है ना आपकी, जैसे मोनो एक्ट आपकी करंट रो थी, इसके आपको क्या करना था, पहले एक रो ऐड करनी थी. तो आपने अपने कर्सर को इस मोनो एक्ट पे प्लेस किया यहाँ पे. फिर आपने क्या किया, यहाँ पे अपने कर्सर को प्लेस किया. यहाँ पे कर्सर को प्लेस करने के बाद आपने किस पे क्लिक किया, इंसर्ट अबव पे क्लिक किया, जो कि ये स्टेप आपके इस ग्रुप में, रोज़ एंड कॉलम वाले ग्रुप में अवेलेबल होता है. उस पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो क्या हुआ, यू कैन सी हियर एक रो इंसर्ट हो गई मोनो एक्ट के पहले. इफ़ सपोज़ हमको इस मोनो एक्ट के बाद में एक रो अगर इंसर्ट करनी है, जो मोनो एक्ट लिखा है ना,
मोनो एक्ट के बाद में अगर हमको एक रो इंसर्ट करनी है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे, जो आपके रोज एंड कॉलम ग्रुप में दिया है ऑप्शन। ओके, जब आप उस पर क्लिक करोगे देन यू कैन सी द रिज़ल्ट, तब आप रिज़ल्ट देख सकते हो कि आपकी क्या हुई, एक रो बाद में इंसर्ट हो गई मोनो एक्ट के। सो अगर आपको बिफोर इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट बिफोर करोगे, इंसर्ट अबव करोगे, इंसर्ट अबव करोगे। अगर आपको बाद में करनी है किसी सेल के तो आप इंसर्ट बिलो करोगे। बिलो मीन्स नीचे, अबव मीन्स ऊपर। दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट अनदर रो above or below. Now next moving to another topic, that is adding columns. अब columns कैसे add कर सकते हैं, और columns हमको add करना है तो same steps हैं column add करने के भी। Okay, so to add the steps to add column to left or right, अब column या तो left में add होगा या तो right में add होगा या middle में add होगा। So to add a column to the left or the right of the current column are क्लिक इन द सेल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस सेल पे क्लिक करेंगे जिसके आगे पीछे हमको कॉलम को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मोनो एक्ट पे हमने क्लिक किया। ओके, अब मोनो एक्ट जहाँ लिखा है उसके ही आगे पीछे हमको कहीं सेल ऐड करनी है। क्लिक ऑन द लेआउट टैब, सेम हम लेआउट टैब पे जाएंगे। लेआउट टैब पे जाएंगे, लेआउट टैब पे हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया ना, लेआउट टैब पे, दिस इज लेआउट टैब, यहाँ पे क्लिक किया। इन रोज एंड कॉलम ग्रुप, अब ये जो रो एंड कॉलम ग्रुप दिख रहा है स्टेप 3 में, इस पे हम जाएंगे। देन द इंसर्ट लेफ्ट का ऑप्शन दिखेगा हमको, टू इंसर्ट न्यू रो ऑन द लेफ्ट ऑफ द करेंट कॉलम। जो भी करेंट कॉलम है उसके लेफ्ट साइड में आपकी रो इंसर्ट हो जाती है। अगर आप इंसर्ट राइट करते हो तो जिस कॉलम पे आपने अपना कर्सर रखा है उसके राइट साइड पे आपका एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। सो और क्लिक ऑन इंसर्ट राइट टू इंसर्ट न्यू कॉलम ऑन द राइट ऑफ द करंट कॉलम। Okay, this is how you can insert rows and columns in a table. In the previous class, I have explained you how to create a table using different methods, and in this class we have seen how to insert data in a table and how to add more rows and columns in a table. In the next class, we will continue further and I am going to explain you how to delete and split a table. How to delete, merge and split cells. Okay. So this is all for today. If you have computers, then try to practice it. Okay, thank you.